Assalamu alaikum everyone. Today in this video we will talk about paper 2019 income distribution summary in the topic of partnership accounting. We are covering profit and loss distribution topic. So let's start. This is the question. A, B and C are partners with capital balances of rupees 80,000, 60,000 and 40,000. Capitals are fixed. It means partners use the current account, or you can say the fixed capital method of recording transactions. The partnership deed provides the following provisions. 7% interest is to be given on capital balances. A and B will receive monthly salary of 2,500 and 3,300. It means to find out their total salary, we will multiply 2,500 with 12 for A and 3,300 with 12 for B. C is not getting any salary. C will receive annual commission of 10,000. It means only once we have to give this commission to Mr. C. After giving salary and commission, if there will be any remaining profit or loss, it will be distributed in the capital at start ratio. During the year, partners' drawings are these, so we have to record the drawings in journal. Drawings का income distribution summary से कोई link नहीं है. No drawings are to be entered in preparing income distribution summary. Net income for the year was 1,25,000. Requirement of the question is income distribution summary and journal entry to record the partner's drawing and distribution of income. So let's see the income distribution summary. We will write capitals beginning here in the rule of lines. Beginning में हम हमेशा capital beginning को या जो भी कैपिटल हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में यूज़ कर रहे हैं उसको लिखेंगे और इसको डबल लाइन से रूल ऑफ करेंगे, जिसका मतलब है कि इसने अपनी पूरी कॉलम में प्लस या माइनस नहीं होना, ये सिर्फ यहाँ लिखा जाता है डबल लाइन के साथ. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वो 1,25,000, वो हमने यहाँ लिखा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव देम बिगिनिंग कैपिटल प्रॉफिट 7%. 80,000 का 7% कैलकुलेट किया, 5,600 है. 60,000 का 4,200 है. 40,000 का 2,800 है. वो हमने तीनों पार्टनर्स को उनके बिगिनिंग कैपिटल्स पर दिया. मंथली सैलरी सिर्फ ए और बी को देनी है. 2,500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया 30,000. 3,300 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया 39,600. कमीशन हमने इसको देना है सिर्फ सी को 10,000 दे दिया. इन दिस वे ऑल टुगेदर ए विल रिसीव 35,600, बी विल रिसीव 43,800 सैलरी एंड कमीशन एंड सी विल रिसीव 12,800. तीनों के मिला के 92,200 हमने इनको पे कर दिए. 1,25,000 प्रॉफिट था, 92,200 पे कर दिए. रिमेनिंग जो हमारे पास प्रॉफिट बचा 32,800 है. इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिगिनिंग कैपिटल रेशियो में. अब बिगिनिंग कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा? दिस इज द कैलकुलेशन. दीज वर द कैपिटल्स ऑफ ए, बी एंड सी, 80, 60 एंड 40. बिगिनिंग कैपिटल्स का हमने रेशियो निकाला, 4, 3 और 2 आ गया. सम ऑफ रेशियो किया, 9 आ गया. जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हमने ए, बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिगिनिंग कैपिटल रेशियो में. न्यूमरेटर विल बी देयर रेशियो, डिनोमिनेटर विल बी द सम ऑफ रेशियो. दिस इज द अमाउंट विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड दीज आर द शेयर्स विच दे विल गेट. सो वी आर फाइनली गिविंग 14,577 टू मिस्टर ए. समरी में हमने यही तीनों अमाउंट्स यूज़ किए हैं रिमेनिंग प्रॉफिट में. 32,800 को 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड किया तो 14,578 ए विल रिसीव, 10,933 बी विल रिसीव, 7,289 सी विल रिसीव. सो ऑल टुगेदर ए विल रिसीव दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट. दोनों को ऐड कर दें. 50,178 टोटल हमने ए को देनी है. 43,800 और 10,933 दोनों को मिला के 54,733 वी विल बी पेइंग टू बी. 12,800 and 7,289 altogether 20,089 we will pay to C. So this is how the amount of 1,25,000 will be distributed in A, B and C. इन तीनों को मिला के टोटल हमेशा 1,25,000 होगा. जो नेट इनकम या लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाइनल अमाउंट जो रूल ऑफ में तीनों पार्टनर्स को मिलेगी वो उसका टोटल इक्वल होगा. और इनका सम देने के बाद हमेशा यहाँ एंड में निल आएगा. So this is how income distribution summary will be prepared for these three partners. Let's see how to record the entries for drawings and distribution of profit. ये calculations हमें show करनी है because in second year accounting intermediate board wants proper computations with the paper. So this is how you should give the computations.
पहले हम बिगिनिंग कैपिटल रेशियो दिखा रहे हैं, फिर हमने रिमेनिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन दिखाई है. According to fixed capital method, we are recording entries. First entry to give them profit. If we are using fixed capital method or if it is written in the question that capital will remain fixed, हमेशा करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री बनेगी. प्रॉफिट दे रहे हैं तो करंट अकाउंट क्रेडिट और इनकम समरी क्योंकि क्लोज हो रही है तो वो डेबिट. अगर लॉस देते हैं तो एंट्री ऑपोजिट हो जाती है, बट हियर वी आर गिविंग प्रॉफिट और द इनकम, देयरफॉर इनकम समरी डेबिट एंड करंट अकाउंट्स क्रेडिट. नरेशन विल बी टू ट्रांसफर नेट इनकम इनटू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. ड्राइंग्स हमने रिकॉर्ड्स की. ड्राइंग ए, ड्राइंग बी, ड्राइंग सी डेबिट. जितनी अमाउंट तीनों ने विदड्रॉ की वो हमने डेबिट की और कैश फॉर्म का क्रेडिट हुआ. दिस इज हाउ वी हैड रिकॉर्डेड ड्राइंग्स. इन्हीं ड्राइंग्स को अब हम क्लोज कर रहे हैं. क्लोज कैसे कर रहे हैं? जब ड्राइंग्स रिकॉर्ड होंगी तो डेबिट और जब क्लोज होंगी तो क्रेडिट. और करंट अकाउंट को कम कर देंगी ड्राइंग्स. सो करंट अकाउंट ए बी सी डेबिट एंड ड्राइंग ए बी सी क्रेडिट. जो ड्राइंग्स हमने रिकॉर्ड की थी उन्हीं ड्राइंग्स को हमने क्लोज कर दिया बाय क्रेडिटिंग. और फाइनली इन्होंने करंट अकाउंट को डिक्रीज कर दिया क्योंकि हमने पार्टनर्स की ड्राइंग्स को फिक्स कैपिटल मेथड में यानी कि कैपिटल को ना टच करते हुए करंट अकाउंट के थ्रू उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2019. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव videos of past papers and other topics of accounting and other commerce subjects. Thanks for